اس دن سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں اس ملک میں ہونے دیں گے. اچھا اور یہ صاحب مسلم لیگ کاف جو ہے چودھری برادران کا بڑا نام ہے سیاست کے اندر اور بڑا ایکا تھا ان کے درمیان, اور اتنے عرصے کے بعد اسٹیج پہ آ کے دونوں کے راستے جدا ہونا, فیملیز میں بچوں کا دباؤ ہوتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں والدین مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی عمران خان کو پسند کرتا ہے تو کوئی نون لیگ کے ساتھ سیاست کرنا چاہتا ہے. یہ کیا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ عمران خان کے پسند کرنے کی بات نہیں, بیسیکلی پاور گیم بڑی الہی اور جو حسین تو وجاہت کا بیٹا نا جی, وجاہت چوہدری شجاعت دیکھیں, چوہدری ظہور اللہ کی فیملی اور ان کی چوہدری منظور اللہ کی فیملی, ان کا مسئلہ ہے. چوہدری منظور اللہ کی فیملی میں مونس لائی ہیں اور پرویز لائی ہیں, اور چوہدری شجاعت صاحب جو ہیں وہ اس کی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن چوہدری شجاعت کو ایک فادر فگر کے طور پہ مجھے کہتے ہیں کہ فیصلے چوہدری شجاعت کرتے ہیں, وہ ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بچوں میں لڑائی ہے چھوٹی موٹی, اور بڑی تلخ قسم کی لڑائی ہے, خاص قسم کی. ابھی دیکھیں نا, ابھی بیسیکلی شافع اور سالک جو ہیں یہ دونوں ہیں, اس میں سے شافع اپنے آپ کو پالیٹکس میں آنے کے چاہت سمجھتا ہے چوہدری ظہور اللہ کی, سالک ہیں اور ادھر طارق بشیر چیمہ ہے اور ایک خاتون, یہ وہ تو خطیبہ وغیرہ تو اس طرف ہے نا, لیکن یہ جو پیورلی فیملی کی بات, تو اصل مطلب وہی ہے کہ شافع جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اپنا اس کو آنا چاہیے, اس فیملی کی میراث ہے, لیکن سالک کو دے دیا گیا. پھر وجاہت صاحب کے بیٹے کو ینگسٹ اس پہ دے دیا گیا, شہر کی سیٹ پہ اس کا کافی مسئلہ ہے. لیکن ادھر سے وہ مونس لائی, چونکہ پرویز نے خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ سنبھالی, اور چوہدری صاحب شجاعت صاحب کے بس کی بات بھی نہیں تھی پنجاب گورنمنٹ سنبھالنا. آپ خود دیکھیں ان کی ایلنگ ہیلتھ, باقی ساری چیزیں, اب جب ایک ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہوتی ہے, دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک فیملی جو ہے وہ اس کی کنٹینیوشن ہو جائے. اب جو بلاول جو ہے بھٹو فیملی نہیں ہے, زرداری فیملی, ایون بے نظیر جو ہے وہ اس طرح کی بھٹو فیملی, تو پھر مرزا بھٹو کو ہونا چاہیے تھا کسی طور پر بھی. ابھی تو فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار جونیئر وہ ختم ہو گیا. تو یہ چیزیں قسمت کے ساتھ سے چلتے ہیں, یہ اصل مسئلہ ہے. لیکن آج یہ بہت عجیب و غریب ٹرمائل میں ہے فیملی اس وقت. آج میرے بات ہوئی, شافع سے بات ہوئی, شافع نے کہا کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں وہاں پر, اور چوہدری صاحب نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں وہاں پر, اور آل پاکستان کانفرنس کا ایک ڈنر ہے, اس ڈنر میں جا رہے ہیں, اور اس ڈنر میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ کیا جائے گا, جو کہ آلریڈی پہلے ہو چکا ہوگا, کمیونیکیٹ ہو چکا ہوگا صاحب, کہ ایک نیشنل اکنامک فورم بنایا جائے. نہیں, وہ تو پرسوں وزیر اعظم نے بھی کہا, وہ کمیٹی بھی بنا رہے ہیں انٹرنیشنل فورم فار اکنامکس, اس پر ہو رہی ہے, اس میں اس کی جیسے خان صاحب نے ایک, لیکن سر پاکستان کی جو سیاست ہے نا یہ بڑی, آج بھی ایک کچھ خبریں نکل رہی ہیں, میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پلان بنائی طور پہ یہ ہے کہ ایک یہ 2 کام کر لیجئے جو آج ہو گئے ہیں, نیب ترامیم میں ہو گئی ہیں, الیکشن کی اصلاحات, اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ کوئی نہ کوئی ایک پارٹی چھوڑ جائے گی, اور وہ کہا جائے گا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے پھر دھوکہ دیا, اور ایک اور بیانیہ جو ہے مارکیٹ میں. اگر خان صاحب کی بات سنی جائے اس کا مطلب ہے کوئی نہیں چھوڑے گا, ان کو واپس نہیں آنے دینا. ہاں نہیں, وہ اچھا ایک بہت بڑی بھول ہے, میں اس بات کروں گا, لیکن اسد ہمارے ساتھ ہے. مقصود جو ہے, اب دیکھیں مقصود کہ جی ڈیتھ ہوئی ہے, مقصود المعروف مقصود چپراسی, اب اس کا اسد اللہ خان ہے, اس نے بریک کی تھی نیوز, اس کے بعد کافی طور پہ. جی السلام علیکم اسد, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام. اسد جی پورا سچویشن بتائیے کہ کس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے تھے, یہ کب سے وہاں پر چلا گیا تھا, اور یہ 2 دن ہوئے, اس کی جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے 2 دن پرانا ہے, آپ نے چونکہ بریک کی تھی نیوز, تو ذرا بتائیے گا. جی اوریہ صاحب دیکھیں, ملک مقصود ایک ایسا کردار ہے جو 2004 میں چودھری شوگر مل میں 7,123 روپے پہ بھرتی ہوا, اور اس کا جو ڈیزگنیشن ہے, جو اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہے جو بینک کا, جو ایف آئی اے کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے, اس کے اوپر اس کا ڈیزگنیشن ٹی بوائے /پی این لکھا ہوا ہے, اور اس کی سیلری 7,123 روپے لکھی ہوئی ہے, جو پھر آخری سیلری اس نے وڈرا کی تھی وہ 25,000 روپے کی تھی. اسی لیے اس کا نام پھر مقصود چپراسی پڑ گیا. لیکن میں اس کو مظلوم کردار کے طور پہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ اس کی فیملی آج بھی لاہور میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی ہے, اور اس کے اکاؤنٹس میں جو 8 کے قریب اس کے مختلف اکاؤنٹس ہیں مختلف بینکس میں, اس میں مجموعی طور پر 3,771 جو ہے وہ ملین روپیز کی ٹرانزیکشن اس کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہیں, 37 کروڑ. اور جی ہاں, تو اب اس میں یہ جو مقصود تھا, اب یہ کوئی 4 سال سے, یعنی مارچ 2018 میں یہ گیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ واپس نہیں آ سکا, باوجود اس کے کہ درمیان میں کئی مرتبہ اس کے مطلب کچھ عرصہ پہلے جیسے اس کے بھائی. لیکن اپنا اسد ایک منٹ اسد آپ کو روکوں گا, مارچ 2018 میں تو ابھی گورنمنٹ بھی انہی کی تھی, اور اس کے بعد یہ کیس کا بھی, اس کا کوئی منی لانڈرنگ کا کیس کا کوئی صورتحال ہے, تو وہ دبئی کیسے چلا گیا یہ 25,000 روپے والا؟
हाँ देखिए, और ये सब इसमें मामला ये है कि FIA ने मतलब कुछ चीजें जो है वो ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, आपको पता है साकिब निसार साहब के जमाने में उठना शुरू हुई थी, ठीक। और फेक अकाउंट जो है वो जरदारी साहब के भी वो मामला वहां से शुरू हो गया था। तो इसको एहतियात के पेश नजर यहाँ से निकाला गया, लेकिन फिर जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई तो उसके बाद इसमें तेजी आना शुरू हो गई। अब जब केस आगे बढ़ा है तो जैसे जैसे केस आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे इसका वापस आना और मुश्किल होता चला गया। लेकिन अब कुछ ऐसा, पहले मेरी इसकी फैमिली के कुछ लोगों से बात हुई थी तो वो होपफुल थे कि ये अब वापस आ सकता है, आ जाएगा, क्योंकि अब हमारी हुकूमत आ गई है तो चीज़ें बेहतर हो गई हैं। और ये वापस आना चाहता था बड़ी शिद्दत के साथ। उसकी वजह यह है कि इसके बच्चों की शादियां वादियां मामला जो है वो अब तय पा रहे थे, कुछ रिश्ते विश्ते हुए थे, तो ये उस सिलसिले में आना चाहता था, लेकिन ये उससे पहले ही जो है वो इसकी डेथ हो गई। अब अच्छा, ये मुझे बताइए, इसका भाई आप भाई जो है इससे पहले चला गया, ट्रिकी चीज क्या है जो आप बता रहे हैं कि इस डेथ को लेकर शुकुक शुबहात जो है? 7 तारीख को देखें उस्मान साहब इसकी डेथ होती है। 2 दिन से मैं इसकी फैमिली से राब्ते में था, मैं उनसे पूछ रहा था कि ये खबरें हैं मेरे पास, तो वो कह रहे थे कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। इवन कल शाम को राब्ता हुआ तो कहा गया कि हमारा तो आज भी उससे राब्ता था, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो घर वाले कह रहे खानदान हैं। का एक बंदा ट्रैवल कर रहा था, सवाल ये पैदा होता है कि जी ये छुपाया क्यों जा रहा था, इसकी मौत को क्यों छुपा रहे थे। इवन आज सुबह तक भी कहा जाता रहा कि हमारा जी कल रात से बस उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, जो है वो उससे मकसूद से राब्ता नहीं हो पा रहा। तो इनका एक ब्रदर निस्बती है, उसने ट्रैवल किया रात 3 बजे की फ्लाइट से इनसे मिलने के लिए, वहां जाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या ये कोई डेड बॉडी लेने के लिए जा रहे हैं, किस तरह से है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो रूटीन का ट्रैवल कर रहे हैं। और फिर उस जो बंदा गया है उससे भी राब्ता मुनक़ता हो गया फैमिली का। यानी फैमिली का कहना यह था कि आज दोपहर 12 बजे तक भी कि जी हमारा उससे जो पीछे गया है बंदा फैमिली का, अफजाल नामी, उससे भी राब्ता नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें इस केस को, इस मामले को मशकूक बना रही थी कि 2 दिन फिर क्या चीजें मैनेज होती रहीं जिसकी वजह से जो है वो ये इसकी मौत को छुपाया जा रहा था। क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट जो सामने आया हमारे, उसमें 7 तारीख की इसकी डेथ। जी असद, तो डेथ सर्टिफिकेट 7 का असद ये बताइएगा कि फैमिली जो है वो ज़ाहिर बात है उसको पोस्टमार्टम के लिए तो फैमिली कहेगी तो होगा, वरना तो परमिशन नहीं हो सकती, ना कोई क्रिमिनल केस है। लेकिन क्या इसको कोई सूरत हाल है कि उसको उस प्रेशर से निकल कर कोई रिपोर्ट कर सके कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए? मुझे और ये सब नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि 2 दिन वहाँ पर जो चीज़ें मैनेज की गई हैं वो शायद ये होंगी कि इसको नेचुरल डेथ के तौर पर ही इंश्योर करके और उसको कॉफिन में यहाँ पर लाया जाए। और आज दोपहर को जब मेरी फैमिली से के कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने प्लान भी यही बताया कि कॉफिन में वहीं सब कुछ उसका जो है वो हो जाएगा और यहाँ पर आकर सिर्फ उसका चेहरा दिखा के और उसकी तदफीन की तरफ मामला जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है जब तक फैमिली पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगी वो तो कानून यही है, पोस्टमार्टम करना चाहेगा, कानून यही। तो मुझे नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि 2 दिन तक चीजें भी शायद कुछ इसी किस्म की मैनेज। बहुत शुक्रिया असद, आपने तफसील से आगाह किया। अच्छा जी, बाकी रहेगी नैब तरामीम और इलेक्शन। अब नैब तरामीम देखें, इलेक्शन ये जरदारी साहब का था मसला। अच्छा, कि जरदारी साहब जो थे वो चाहते कि ये 2 तरह। अब मुझे साहब मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ वार्न, और ये बहुत खौफनाक वार्निंग है। प्लानिंग ये की गई है और ये इमरान खान भी समझते हैं और बाकी लोग भी समझते हैं, और वो लोगों को कम्युनिकेट भी किया जाएगा कि इमरान खान को अब नहीं आने देंगे। लेकिन भरोसा कोई नहीं है। अच्छा, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा चल रहा था तो ऊपर से लेकर नीचे तक कहते थे इनको नहीं, नवाज फैमिली तो भूल जाए वो इक़्तिदार में आना। नवाज शरीफ तो मरियम तो सवाल ही नहीं, शहबाज शरीफ आजम तो अभी भी तो माइनस ही है ना दोनों। नहीं, माइनस को नहीं था, वही है नहीं टोटल। शहबाज शरीफ के साथ वो कहते हैं कि डिच करता है, ये नहीं करता, वो करता है, ये चीज़ ठीक। बेनज़ीर को इस वक्त उन्होंने आउस्ट किया था, आपको पता है कि 97 जब दोबारा जब आउस्ट किया, जब नवाज शरीफ को दोबारा 97 में ले गया तो कहते नहीं, काबिल भरोसा नहीं है नवाज। तो ये कोई पता नहीं है सर इन लोगों का, एक बात क्या आउस्ट का। लेकिन जो प्लान मैं समझ रहा हूँ बन रहा है इस सारे प्रोसेस के अंदर, इलेक्शनरिंग का प्रोसेस के अंदर, ये मुझे 2 मौके याद करा रहा है। एक 1970 के इलेक्शंस की और एक 1977 के इलेक्शंस की। अच्छा, दोनों पाकिस्तान की तारीख के खौफनाक तरीन इलेक्शन थे और इन इलेक्शन के भरोसे के ऊपर 70 के इलेक्शन को तो कहा जाता है बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे। उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट ने मैं बता रहा हूँ क्यों, उसके बाद ये हुआ ये था कि 70 के इलेक्शंस के अंदर अटक से लेके और रहीम यार खान तक सिर्फ 2 वडेरे जीते थे, चौधरी ज़ोरलाई और मियाँ मुमताज़ दौलताना। बड़े बड़े बुर्ज हार गए थे। ऐसे ऐसे लोग जो कभी सोचते नहीं थे कि हम हारेंगे। कौसर नियाज़ी जैसा बंदा जेल में था, सियालकोट में उसने ख़ालिद अफजल को हरा दिया था। कारदार साहब कहते हैं भुट्टो साहब ने मुझे 22 साल में खड़ा किया, अंग्रेज़ किस्म के आदमी थे, एक दफ़ा
इछरे में नहीं गए, कृष्ण नगर में नहीं गए, कंपेन चला गए, जीत गए थे। मंजूर से दुधरा होता था हमारा एडवोकेट, वो पीर पार्टी का सब छोटा सा आम कार्यक्रम था, तो उसको उन्होंने दे दिया था मंडी बहुद्दीन जहान बसाल वाला, गुंडों का इलाका, बदमाशों का इलाका। उसने सिर्फ बसाल ने कहा था आना मत, टिकट तो ले लिया। उसने कहा बसाल साईं एक दरख्वास्त, मेरी एक ना जीप चलती रही अनाउंसमेंट की। अच्छा, उसकी जीप चलती रही थी और मंजूर हसन तजरा ने 1920 से बड़ी मुस्तकिल फैमिली अंग्रेज की उसको शिकस्त दे दी थी। कौन कौन ने शिकस्त? उस दिन से एस्टेब्लिशमेंट ने एक फैसला किया था कि अब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं इस मुल्क में होने देंगे। अच्छा, क्योंकि वहाँ मुजीबर रहमान जीत गया 160, यहाँ भुट्टो जीत गया। ठीक, अब हम इंजीनियरिंग करेंगे, और इंजीनियरिंग को भुट्टो समझ गया था कि क्या सूरत आ रहा है, तो भुट्टो ने उसके मुकाबले में इंजीनियरिंग शुरू की और भुट्टो को भी उन्होंने साथ बना लिया। उस इंजीनियरिंग की हालत ये हुई कि 1977 आ गया और ज़िया को आना पड़ गया। अभी भी एक इंजीनियरिंग करने की कोशिश, क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो ज़िमनी इंतखाब में लग जाएगा ना पता क्या हो रहा है 20 साल ये बहुत खौफनाक हो सकते हैं, मैं समझता हूँ बहुत खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह पता है क्या, दो चीज़ें कि भुट्टो में 77 के इलेक्शन में से पहले एक 74 का इलेक्शन हुआ था। अच्छा, जिसमें चौधरी दौरले को गिरफ्तार किया गया, खारियाँ इलेक्शन। उस इलेक्शन में एक अजीब व गरीब खूनी किस्म की सूरत हाल बनी थी। मुझे याद है बारकुल्ला खान बेचारे को, और ये सब शकूर साहब और साल्ला वकाजी सब हम लोग कैंपेन करने जाते हैं, और भुट्टो ने हशर कर दिया था उस वक्त के क्या जीतना जीतना, और आग लगा और वीरान कर पोलिंग स्टेशन सब कुछ, और दौरले चुके मुकाले हुए थे उसको उठा के कोलू ले गए। अगर पोलिंग स्टेशन, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं 5 इलेक्शन करवाए हुए हैं, मेरे साथ जितने भी लोग जिन्होंने इलेक्शन करवाए हैं उनको सारों को यहाँ बिठा दो, मैं किसी दिन लाऊंगा उनको। पोलिंग के दिन धांधली करना अब नामुमकिनात में से हो चुका है। अच्छा, नामुमकिनात में से हो चुका। अगर ये करने का काबिल होते तो कभी भी परवेज मुशर्रफ को 11 वोटों की जरूरत न पड़ती पैट्रियट की। पता कौन कौन लोग गए थे, सिकंदर वगैरह और फैसल साले रियाज, क्या क्या लोग थे जो चले गए थे उसको, और उसके साथ साथ फिर भी आजम तारक का वोट लेना पड़ गया, और वो मुशर्रफ जो गाली देता होता था मुल्लाओं को और ये उनको वोट लेना पड़ गया। तो इलेक्शन से पहले जो होगी मनूवरिंग, वो पब्लिक मैंडेट के फ्लो को नहीं रोक सकती। मैं आज भी एस्टैब्लिशमेंट से 10 अर्ज करता हूँ कि 5,000 6,000 का मार्जिन हो, 10,000 का मार्जिन हो, 15,000 का मार्जिन हो, तो जो मर्जी करते रहो, तुम हमेशा से बदमाशियाँ करते आए हो, लेकिन अगर फ्लो पता चल जाए ना आपको, तो फिर इस कौम पर रहम करना। अच्छा, इसलिए कि फिर इस कौम पे अगर आपने रहम न किया तो फिर वो जो बंदा आप जितवाएंगे वो हुकूमत नहीं कर सकेगा। जिस तरह 77 के जो जीते हुए लोग थे ना, अपने नाम के साथ MNA नहीं लिखते आज, हालांकि वो जीते थे और 4 महीने में MNA MPA रहे थे, वो साबिक MNA MPA 77 नहीं लिखते, वो कैफियत बन जाएगी। चलो जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन।